ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਕਰਮ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਪਠਵਾਰੀ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਮੋਢੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਕੀ ਸਦੀਕੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਕਾਫਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਾੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਆਪ ਮੋਢੀ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਆਪ ਦਾ ਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੀਦ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਹਯਾਤੀ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਆਪ ਦਾ ਸਹੀ ਨਾਂ ਸਿੱਧਾ ਨਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਦੀਕੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਅਦਬੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ। ਆਪ ਟਕਸੇਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਮ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੰਮੇ ਸਨ। ਕਿਤੋਂ ਜੰਮੇ ਸਨ? 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਲਦ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤੀ ਕਿੱਥੋਂ? ਉੱਥੋਂ ਟੈਕਸੇਲਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹੀ, ਤੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਤਾਲੀਮ ਸਹਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਲੀਮ ਛੱਡਦੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਤਾਲੀਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਮਾਸਟਰ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਮਾਸਟਰ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਆਪਣੇ ਅਬਾਈ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਕਸੇਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰੀ ਵੀ ਛੱਡਤੀ ਤੇ ਬੰਬਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਬੰਬਈ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ 1909 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਸਾਂਝਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬੰਬਈ ਜਾ ਕੇ ਫਿਲਮੀ ਗਾਣੇ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਆਪ ਨੇ ਵਾਹਵਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਆਪ ਫੌਜ ਵੀ ਭਰਤੀ ਰਹੇ, ਕਲਰਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਕਲਰਕ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਐਡੀਟਰ ਵੀ ਰਹੇ। 7 ਰੋਜ਼ਾ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਰਾਹੇ ਮੰਜ਼ਲ। ਹਫ਼ਤਾ ਰੋਜ਼ਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੀਚਰ ਡਰਾਮੇ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ 'ਚ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰੀਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰੀਦੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਬੋਲ ਕੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਖੇ। 1926 ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ ਤੇ 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੇ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਟੇਸੀ ਦੀ ਤੇ ਉਤਲੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੀ। ਆਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ 17 ਜਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਰਸਾਲਿਆਂ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਛਪਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਨੇ ਉਰਦੂ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਾਮੇ ਜਮ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਪਿਆਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਂ ਸੀ ਕੱਚੇ ਘੜੇ। ਤੇ ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਕਿਦੋਂ ਲਿਖਿਆ? 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। 67 ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਬਾਅਦ? 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪ ਉੱਥੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਹਾਮ ਜਿੱਥੇ ਜੰਮੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਡ ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਤੀਆ ਵੀ ਮਜਮੂਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਅਕੀਦਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਕੀਦਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਛਪਿਆ ਸੀ। ਖੈਰ, ਆਪ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਪਠਵਾਰੀ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਐਡੀ ਛੋਟੀ ਬਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਵੇਕਲੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਮੋਢੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਠਵਾਰੀ ਜਾਂ ਪਹਾੜੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਹਣੀਆਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਉੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਡੱਕ ਨਾ ਸਕਣ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਖਤਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਮਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਮਤਾਂ, ਮੁਹਾਵਰੇ ਤੇ ਸਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇਟਿਵ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਮਜ਼ੀਦ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੀਏ ਤੇ 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਆਪਣੇ 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 1911 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਤਕਸੀਮ ਖਤਮ ਹੋਈ ਵਗੈਰਾ। ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੇਖੀ ਸੀ ਤੇ 1972 'ਚ ਫੌਤ ਹੋਈ। ਯਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮਤਲਬ ਆਪ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਨ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਸਨ ਨਾ, ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਮਾਰ ਕਟਾਈ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਕੰਜਾਹੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਤੋ
आपने अपने दौर की अक्कासी भी की थी। अगे असी इन्हां दी शायरी के बारे कुछ थोड़ा जिहा वैरवा करने की कोशिश करने आ। अच्छा, बाकी सिद्दीकी दी शायरी दे विच तुसीं ना कुछ गल्लां इस तरह दी वेखोगे जिहड़ियां तुसीं दूजे शायरां दे विच नहीं वेखोगे, यानी कि उन्हां दा लहजा का की ना जिथे तां आना उत्थे ना आएगा, मतलब ਜਿਹੜਾ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਜਾਂ ਪਹਾੜੀ ਲਹਿਜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਟੋਟਲ ਦਾ ਟੋਟਲ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕੱਚੇ ਘੜੇ, ਇਹਦੇ ਟੋਟਲ 91 ਸਫੇ ਨੇ ਜੀ, 91, ਤੇ 6 ਇਹਦੇ ਬਾਬ ਨੇ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਬ ਦਾ ਉਨਵਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਉਨਵਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਬਾਕੀ ਨਜ਼ਮਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉਨਵਾਨ ਹੈ ਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤੱਕਾ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਐਵੇਂ ਮੇਂਡਾ ਸਾਫਾ ਖੁੱਲਾ, ਦਿਲ ਉਮਰਾਂ ਨਾ ਪੈਂਡਾ ਨਾਪੇ, ਤੇ ਭਰੀ ਜਵਾਨੀ ਸ਼ਿਕਰ ਦੁਪਹਿਰਾਂ, ਖੇਡਣ ਦੇ ਦਿਨ ਚਾਰ, ਵਗਣਾ ਪਿਆ ਸੋਹਾਂ ਡੋਲਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 6 ਬਵਾਬ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਹੇਠਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਬਵਾਬ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਨਜ਼ਮਾਂ ਆਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਉਤਲੇ ਬਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਸ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਨਜ਼ਮਾਂ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਨਾਮੇ ਹੇਠਾਂ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ इन्हां बाबां दे विच भी हर एक नज़म का एक टाइटल भी है, ठीक है। अच्छा, हुण वेख लैने कच्चे घड़े तो की मुराद है। जिहड़ा इन्हां ने कच्चा घड़ा रखिया, कच्चे घड़े तो दो मुराद लिया जा सकते हैं। पहला तो कच्चे घड़े तो मुराद यही लिया जा सकता है कि पंजाब दा जिहड़ा जिहड़ी लोक कहानी है ना, उहदे विच एक किस्सा सोहनी माईवाल है। एक जिवें किस्सा सस्सी पुन्नू, किस्सा हीर रांझा, इंज किस्सा सोहनी माईवाल है। ते होया इह सी कि जिहड़ी सोहनी सी ना, ओह अपने माईवाल नूं मिलण वास्ते ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਤੇ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਡੁੱਬ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਘੜਾ, ਜੇ ਕੱਚਾ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਘੜਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਡੁੱਬ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਰਾਦ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਆਰਜ਼ੀ ਜਿਸਮ ਦਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਰਜ਼ੀਪਨ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਨਸਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਵਜੂਦ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਰਜ਼ੀਪਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਜੂਦ ਕੱਚਾ ਘੜਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਉਹਨੇ ਢਹਿ ਜਾਣਾ, ਕਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਕਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਛੋਟੀ ਬਹਿਰ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ, ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਕੂਜ਼ੇ 'ਚ, ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਕੂਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉੱਤੋਂ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਲੰਘ ਗਈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ, गाड़ी निकल गई है और पीछे रह गए हैं, भां भां करने स्टेशन, पां पां करता हुआ स्टेशन, और शां शां करने कान। शां शां साएं साएं होती है ना कानों में, जब गाड़ी ये यहाँ पे रेलगाड़ी की बात हो रही है ना, तो रेलगाड़ी गुजरती है तो पीछे से साएं साएं होती है कानों में। सो यहाँ पे वो ये बात कर रहा है ना, मतलब जवानी लंघ गई है, हुण पीछे ना, ये बुढ़ापे की गल करते पहले ना, जिंदगी दा आरजीपन की गल करते पहले बई, हुण ना बुढ़ापा आ रहा है ते जवानी लंघ गई है, हयाती सारी लंघ गई है, पिछे हुण ना बस हुण साएं साएं रह गई है, यादां रह गई, गल्लां रह गई, ठीक है। ਤੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਛੋਟੀ ਬਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਦਲ ਆਣ ਤੇ ਝੱਖੜ ਝੁੱਲਣ, ਝੁੱਲਣਾ ਉਹ ਝੁਲसी, ठीक है। बदल आण, जब बादल आते हैं तो बहुत ज्यादा गरज चमक होती है, छेड़े उड्डण साफे खुल्लण। जो भी जो बादल आते हैं, जब बादल आते और गरजते हैं, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है, जो चीजें होती हैं छोटी मोटी चीजें वो उड़ जाती हैं, और जो साफे हमने आमतौर पे ऊपर छतों पे डाले होते हैं वो खुल जाते हैं, ठीक है। इसे साफे तो मुराद तहमत भी है, तहमत जड़ा वो भी खुल्लण। तक्का तक ना सक्का, देखो मैं कह ना बारिश से परेशानी नहीं है ना, कोई भी परेशानी मुसीबत दो भी ये शो कर रहा है, ठीक है। तक्का तक ना सका, मैं देखना चाहता हूं लेकिन देखा नहीं जा रहा मुझसे, क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा नेरी है ना, ठीक है। दोवां मतलब में तुम इस्तेमाल कर सकते हो। बारी विच बैठा तक्का, मैं बारी च बैठा, साइड ते बैठा वेखण दिया वां कि फलानी थां ते बारिश आई है, ते उत्थों वेखिया ही नहीं जाण दिया मैनूं, उत्थे बदल आए ने, बिजली चमकदी पई है, उत्थे चीज़ां उड़दियां पईयां ने, साफे खुलदे पए ने। सो मैं बारी च बैठा उत्थे वेखे तकना पिया। ये जिहड़ा पहला बाब है ना, उहदे विच ना बारी च बैठा तक्का, इस बाब दा नाम ही बारी च बैठा तक्का। मैली हुई चादर चिट्टी, गली गली नी उड़नी मिट्टी। जो चिट्टी चादर है ना साफे खुल्लण, वो जो किरदार है ना अच्छाई वाला,
वो मैला हो गया है, वो गंदा हो गया है, गली गली नहीं उड़नी, हर जगह से गंद उठ रहा है उस मुसीबत की वजह से। जब इंसान पे मुसीबतें आती है ना तो लोगों के चेहरे खुल के सामने आने शुरू हो जाते हैं। तो वो जो अच्छे अच्छे खूबसूरत खूबसूरत चेहरे होते हैं ना, उनकी फिर मिट्टी उड़नी शुरू हो जाती है, फिर वो सही चेहरे नजर आना शुरू हो जाते हैं। फक्का फक न सका, फकना खाना, वो जो मिट्टी है ना, अगर मैं मुंह खोल लूं भी वहां पे बैठा तो इतनी नहीं फक सकता, वो मिट्टी डिसाइड करेगी कि उसने मेरे मुंह में कितना जाना है। वो जो मिट्टी है, वो जो परेशानी है ना, मैं चाहता हूं कि सारी मिट्टी अपने अंदर जज्ब कर लूं। वखरी वखरी तो रह सकते, लेकिन मैं फक नहीं सकता। उन्हें इंज होना ही होना है, चादर ने मैली होना ही होना है। गली गली दी मिट्टी उड़ के ते दूजियां गलियां तक जानी जानी। बारी विच बैठा तक्का, मैं बारी 'ਚ ਬੈਠਾ ਐ ਬਣਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਹਕੀਕੀ ਮਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਜਾਜ਼ੀ ਮਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਓ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਵੇਖੋ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਜ਼ਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰੀ ਕਈ ਪਰਛਾਵੇਂ, ਪਛਾਵੇਂ ਪਰਛਾਵੇਂ, एक पछावा दुनिया तक है, एक चेहरा मेरा दुनिया में दी है। मैं इंसान हूं, मेरी कई रुख हैं, एक पछावा दुनिया तक के, एक पछावा दुनिया तक है। एक जो पछावा है ना, एक साइड मेरी दुनिया देखती है, और पछावे मेरे अंदर शुकण। और जो बाकी पछावे हैं, जो बाकी मेरी साइड्स हैं, बाकी मेरे पहलू हैं, वो मेरे अंदर हैं और वो छूकते हैं जैसे सांप छूकता है। मेरी मिट्टी चट्टन, वो मुझे ही डस रहे हैं। वो सांप जो है ना, वो मुझे ही अंदर से खा रहे हैं। मेडिया नीहा पट्टन, मेरी बुनियादों को उखाड़ रहे हैं। नीहा बुनियादों को उखाड़ रहे हैं। मैं घट्टां विच बैठा, मैं ना उत्थे घट्टां च ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, उस घट्टे ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। दुनिया कोलों डरना, मैं दुनिया से डर रहा हूं। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ रंग बिरंगे पर्दे पावां। वो जो मेरे अंदर के पछावे है ना, उनके ऊपर मैं अलग अलग किस्मों के पर्दे पा रहा हूं। ला ला के खुशबुआं अपना गंद लुकावा। ਇਹਦੇ ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੂ ਵੇਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਪਹਿਲੂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਚਿਹਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੁਕਾਣਾ ਵਾ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਖਾਦੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਪਰਦੇ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਫੇਸ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਈਡ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਮੁਨਾਫਕਤ, ਗੰਦ, ਬੁਰਾਈ ਏ, ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਹਾਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ। ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਛਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਨਜ਼ਮ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, 3 ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਮਤਲਬ 8-10 ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਉੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਡੱਕ ਨਾ ਸਕਣ ਫੁੱਲਾਂ ਨੀ ਖੁਸ਼ਬੂ। टॉल वॉल्स, ऊंची दीवारें, कैन नॉट स्टॉप, नहीं रोक सकती द अरोमा ऑफ फ्लावर्स, फूलों की खुशबू। मेरा ख्याल ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਮਜਾਜ਼ੀ ਮਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਦੀਕੀ ਹਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਚੱਲੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਪਹੀਏ पीछे, एक गाड़ी चले जिसके ना आगे पहिए हैं ना आगे उसके टायर है ना पीछे हैं, ना उसके पीछे ना पहिए आगे, ना ही उसके पीछे पहिए हैं ना आगे हैं। मतलब सर एक गाड़ी चल रही है जिसके ना आगे पहिए हैं ना पीछे पहिए हैं, ना पीछे पहिए हैं ना आगे पहिए हैं। हर डब्बी डिंगी, तो सरकारी गाड़ी की हर डब्बी, मतलब ये रेलगाड़ी लगा रहे हैं ना, हर डब्बी उसकी डिंगी है, टेढ़ी है, डिंगी टेढ़ी है। हर पुर्जा ढिल्ला, हर एक पुर्जा उसका ढीला है। चले ते सारा पिंजर हिले, एक गड्डी चले। यहाँ पे बाकी सिद्दीकी सरकारी मशीनरी या सरकारी जो हमारे मामला है, पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, पंजाब के अंदर ये चल रहा है कि जो है ना, वफाक पे किसी और की हुकूमत है, वोट किसी और को ज्यादा डले हुए हैं। जो है ना, वो सूबों में किसी और की हुकूमत है, एक सूबे में किसी और की हुकूमत है, दूसरे में किसी और की हुकूमत है। सो ओ सरकारी देखो, बाकी सिद्दीकी को तो नहीं पता सी। और क्योंकि पाकिस्तान का पहले दिन तो यह हाल है कि पाकिस्तान का कोई निज़ाम कानून ऐसा है जिहड़ा सारी दुनिया ते अप्लाई होंदा, लेकिन जजां ते अप्लाई नहीं होंदा। जिहड़ा कानून अप्लाई करदा उहदे ते नहीं अप्लाई होंदा, बाकी सब ते होंदा है। पाकिस्तान का पूरा निज़ाम इस तरह ही है कि एक कोई ना उहदा कोई पहिया है, ना हर उहदा काम, हर डब्बी उहदी ना
हर टिबरी ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਢਿੱਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਵਿੰਗੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਚ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿੰਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬੇਹਿੱਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਨੇਰਾ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂਟ ਗਨੇ ते रात करे अरमान। जो बुराई है ना, अंधेरे से मुराद है यहाँ पे बुराई, शैतान। अंधेरा, अंधेरा जो है ना वो आंखें बंद कर लेता है। ते रात करे अरमान, जो अंधेरा है, जो रात है, जिससे हर एक वो चीज, जिस रात तो मुराद है हनेरा होंदा ते हनेरे तो मुराद बुराई होंदी है। चिट्टा रंग जिहड़ा है ना वो अच्छाई नूं शो करदा ते काला रंग बुराई नूं शो करदा। कहंदे कि बुराई भी सकून करदी है किदों, हिक डूए आ नंगा करके। जब हसन जद इंसान, जब लोग एक दूसरे को नंगा करके, हिक डूए नंगा करके, एक दूसरे को जब वो नंगा करके इंसान हंसते हैं ना, तो बुराई, शैतान, वो कहता है ना कि आजकल एक मीम बड़ी चल रही है कि जिसमें रमजान चल रहा है चूंकि, तो वो शैतान जो है ना वो परेशान हो रहा है, यार इन लोगों को मैं ड्राइव कर रहा था, ये तो बल्कि मेरे भी किंग है। सो इत्थे ना जिहड़ी परेशानी है, जिहड़ा दुख है, जिहड़ा गुनाह है, जिहड़ी बुराई है ना, वो खुद परेशान है कि भी ये बंदे की करते फिरदे ने एक दूजे दे नाल। बाकी सिद्दीकी हारा दा रोमानवी रंग जरा चेक करो, ठीक है। वो लिखते ने, तुद गुलाबी चुन्नी रंगी, तुमने पिंक कलर की जो दुपट्टा है ना उसको रंगा, कलर करवाया है। मैं गुलाबी पग, पंजाब दा कल्चर है ना कि जेड़ा साडा जवान है वो पग लेंदा है, तो मैंने तुम्हारे कलर वाली पंजाब जो गुलाबी है वो पग ऊपर जो है ना वो पग मैंने उसको गुलाबी कर लिया। दो दिलाना इतना मिलना, दो दिलों का ऐसा मिलना कि मैंने तुम्हारी चुन्नी के रंग की जो पग है ना वो मैंने ले ली है, या मेरी पग के रंग की तुमने चुन्नी ले ली है। दो दिनों का इतना मिलना, दो दिनों का ऐसा करना भी तक ना सकिया जग, दुनिया ये नहीं देख सकी। दुनिया सड़बल के रह गई, दुनिया कहती बे कुड़ी की करदी बे, मुंडा की करदा। भाई तुमने गुलाबी चुन्नी रंगी है, तुम्हारा दुपट्टा गुलाबी है, मेरी गुलाबी पग है, लोगों को इस बात पे भी एतराज है। चलो जी, फिर पंजाब दी डेली दी रीत बारे लिखते ने, सरगी ना वेला होवे जाग पईयां गलियां, किसियां बलान पईयां ऊंठां दियां टलियां। भाई पंजाब दे अंदर सरगी दा वेला है ते गलियां उठ पईयां, सवेरे सवेरे लोग अपने अपने, बारिश वाली गल है ना, ते लोग अपने अपने कम, हिक ना उठ के मधानी पा दित्ती, हिक ना लभदे फिरन हनालियां भी, बाबा बारिश भी यही लिखदा है ना। ते सरगी ना वेला होवे जाग पईयां गलियां, पंजाब दी जो सुबह सुबह दा वेला हुंदा, पंजाब दीयां गलियां जाग पैंदियां। पंजाब दे जवान ते पंजाब दीयां जड़ियां ना वो पंजाब दे सूरमे ते पंजाब दीयां जड़ियां राणियां धियां राणियां ने वो उठ के मधानी दा वो जड़ा कम शम करना शुरू कर दिंदियां ने। ते फिर किस्से बलान पईयां, कुछ लोग इस तरह जेडे ऊठां वाले ने ना उन्हां नूं ना ऊंठां दीयां टलियां टन 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 लोकां नूं वो बुलाण डईयां ने भी उठो जवानों, ऊठां वालियां नूं ऊठां दीयां टलियां सददियां पईयां ने। बाकी सिद्दीकी हरी अपना छोटी बहन नूं बरकरार रखदे होए वेखो लिखदे ने, हिक बूटा, एक ना बूटे दे तजर्बात, एक दरखत दे तजर्बात दसदे ने। इहदे तो मुराद बाकी सिद्दीकी हरी आप भी ने ते या कोई भी बंदा जिहड़ा लोकां नूं ऑब्जर्व करदा है ਉਹਦੇ बारे दसदे ने। एक बूटे दे जिहड़ा रुकिया होया बंदा हुंदा, जिहड़ी रुकी हुई शै हुंदी, ਉਹਦੇ तजर्बात शेयर करदे ने। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ने, आण मुसाफिर जान मुसाफिर, नज़म दा उनवान हिक बूटा। आण मुसाफिर जान मुसाफिर, ए पतरानी विथां विचों, मुसाफिर आते और जाते रहते हैं, ये अपने पत्तों की के अंदर जो खुला होते हैं ना, पत्तों के दरमियान खुला होता है ना, उनकी विथों के अंदर से, उसके खुला के अंदर से हर राही बिट बिट तक के, बिटर बिटर हर राही को देखता, मतलब देखता ही रहता है क्योंकि वो हिल नहीं सकता ना। हर राही बिट बिट तक के, कोई इसना राज ना समझे। कोई भी मुसाफिर आते और जाते हैं, कोई भी उस दरख्त को नहीं पूछता जो जिस दरख्त की छांव में वो लोग बैठते हैं, ठीक है, तो वो नहीं पूछते, बस आते हैं अपना काम निकालते हैं और चले जाते हैं। कोई ना दिल फरोले, कोई ना इसने पत्थर ढाए, कोई उसका दिल नहीं फरोलता, कोई भी पत्थर साइड पे करके उससे नहीं पूछता, हाँ भाई सुना क्या हाल है तेरा, ठीक है। तो वो जो बूटा है, वो जो दरख्त है, वो ये फील कर रहा है ना। कोई ना इसनिया टहनियां खपे, कोई भी उसकी जो टहनियां हैं वो खपता नहीं, कोई भी उसकी टहनियों को तोड़ता नहीं है, बस वो क्योंकि वो दूसरा होगा ना, वो छांव वाला दरख्त होगा, ठीक है, वो फल वाला नहीं। फल वाला होता तो लोग बट्टे मार मार के उसको जख्मी कर देते। सो वो ये चाहता है कि कोई उसको फरोले, कोई उसकी टहनी को हाथ लगाए, कोई बादशाह तो करे, कोई बात का आगाज तो करे। वो आइसोलेशन का शिकार हुआ पड़ा है, ठीक है, वो कंपनी चाहता है, ठीक है। फिर भी ये अनमुल्ला संगी, फिर भी ये बेशकीमती इंसान, फिर भी ये बेशकीमती दोस्त जिसकी प्राइस ही नहीं है। अनमुल्ला
प्राइजलैस जो दोस्त है, सारियां उत्ते रात टोले डोले कि सबके ऊपर ये अपना खून निछावर करता है। खून कैसे निछावर करता है कि जो सूरज उस पर गर्मी डालता है वो उस गर्मी को अपने ऊपर बर्दाश्त करता है और नीचे वाले पे वो अपनी रात डोलता है, वो अपनी एनर्जीज नीचे वालों को देता है छांव की सूरत में, और वो लोग आते हैं आके चले जाते हैं। मैं इसको उर्दू में एक मरतबा फिर बोल लेता हूँ, जिनको समझ नहीं है वो समझ लेंगे। मुसाफिर आते और जाते रहते हैं, ये पत्तों के दरमियान में, उनकी खला के दरमियान में उन्हें दिखता रहता है। ये हर एक राही को बिटर बिटर दिखता रहता है, बस तकता रहता है टिक टिकी लगा के। कोई भी उसका राज नहीं समझता, कोई भी उसका दिल नहीं जो है ना उसको टटोलता, कोई भी उसके पत्रों को हाथ लगा के उसको ढाता नहीं है, कोई भी उसकी टहनियों को तोड़ता नहीं है। फिर भी ये प्राइजलेस बेशकीमती दोस्त सबके ऊपर अपना खून निछावर करता है। अच्छा, अगली की नजर असी वेख ली, उन्वान है दादू एक बदमाश। यहाँ पे बदमाशों के बारे में वो लिखते हैं, जो हमारा पंजाब के अंदर जो बदमाश का एक कल्चर है जो बना हुआ है, उसके बारे में वो लिखते हैं। जरा देखते हैं। दादू हिक बदमाश, उच्चा शिमला रखे चिट्टे कपड़े लाए। दादू एक बदमाश है जो कि अपनी पग का शिमला हमेशा ऊंचा रखता है और वो सफेद कलर के कपड़े पहनता है। टुरना फिरना फितना, वो चलता फिरता हुआ फितना है, कोई कम ना छोड़े, कोई भी कम नहीं छोड़ता। राती सन ना लाए, रात को चोरी करता। सन लगाना, कोई दीवार है ना मतलब, तो उसको तोड़ के अंदर घुस जाना। राती सन ना लाए, फजरी किकरा थल्ले बह के खेडे ताश। दादू है एक बदमाश, रात को वो चोरियां करता है, दिन को वो ताश खेलता है। तो जो दरख्तों के नीचे बैठ के ताश खेलता है। सो दादू एक बदमाश है। निक्के वड्डे सारे इसने अगे नंगे, राह विच खल के पानी कुड़ियां कोलों मंगे। जो छोटे और बड़े हैं ना, सब उसके सामने नंगे हैं, कोई उसके सामने बात नहीं करता। तो बड़ा टैका, बड़ी बदमाशी है उसकी। राह विच खल के पानी मंगे कुड़ियां कोलों, राह विच खल के पानी कुड़ियां कोलों मंगे। भाई जिस मर्जी को लड़की को रोके बताओ, गल सुन, चल पानी पिया। मतलब फुल बदमाश टाइप आदमी है ना, जिथों कोई रोके उथों मुड़ मुड़ लंगे। वो मतलब सिरफिरा हुआ कोई बहुत ही योद्धा किस्म का आदमी है, जहां से उसको कोई रोकता है ना, उथों दी जान के लंघदा भी आ भी तेरा मकाल, मकाल तुरदी फिरदी मकाल लगा फिरदा है ना। ठीक है। कस्सी विचों फजरी, द इंपॉर्टेंट पार्ट, हर एक बदमाश का यही अंजाम देखा है मैंने। कस्सी विचों फजरी, सुबह ना पैली दे विचों, कल सुबह फजर के वक्त जमीन में से, पैली में से उसकी लभी उसनी लाश, उसकी लाश मिली है, किसी ने उसको फड़का दिया है। अब वो बदमाश था, उसकी सबके साथ तो बनती नहीं थी, किसी के साथ बनती नहीं थी। सो पता भी नहीं चल रहा कौन मार गया। सो बदमाशों का आगाज बिल्कुल ऐसा ही होता है, लेकिन अंजाम भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। कभी मैंने आज तक अपने इस 31 साल कैरियर के अंदर कभी भी किसी बदमाश का इससे बेहतर अंजाम मैंने नहीं देखा। आई ऑलवेज सा द मोर यू गो अप इन दिस फील्ड, द फास्टर यू गो डाउन, लाइक दिस। ओके, कौडी दे बारे वेखो जी। हुण ਸਾਡੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕੌਡੀ ਦਾ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੀ, ਉੱਥੇ ਪਹਾੜੀ ਲੋਕ ਵੀ ਕੌਡੀ ਛੋੜੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੌਡੀ ਹਿੱਕ ਦਸਤੂਰ, कौडी हिक दस्तूर, दुश्मन घेरा पाके आए सज्जन हसन दूर। आप इसको हकीकी माना के बजाय मजाजी माना में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कौडी कबड्डी एक दस्तूर है, जब दुश्मन घेरा डाल के आते हैं तो दोस्त दूर खड़े हंस रहे होते हैं। कौडी हिक अरमान, कौडी एक ख्वाहिश है, रंग बिरंगे रूप बदल के खेडन सब इंसान। ये हर बंदा कहीं ना कहीं कौडी खेल रहा है। कोई बंदा अपनी किस्मत के साथ कबड्डी खेल रहा है, कोई बंदा अपने मतलब अलग अलग साइड्स पे, हम कुछ लोग अपनी बीमारी के साथ कबड्डी खेल रहे हैं। तो कौडी हिक अरमान, ये एक अरमान है, अजीब सा अरमान है। रंग बिरंगे रूप बदल के लोग विद वेरियस सॉर्ट ऑफ कलर्स, वेरियस सॉर्ट ऑफ फेसेस, दे प्ले, every person play कबड्डी in different sort of scenarios and situations। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨॉन ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਇੰਨੀ ਲੰਮਾ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਕਦੀ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਆਖਰੀ ਸਲਾਈਡ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਕੀ ਸਿੱਦੀਕੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਾਵਾ ਸਾਰਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਚਾਂਸ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਿੱਦੀਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਆਣਗੇ। तो ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰਾਨਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ। ਜਗੀਰਦਾਰਾਨਾ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰਾਨਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿਵੇਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਸਤਹਿਸਾਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮਿਲਣਾ ਘੁੱਗੂ ਵੱਜਿਆ, ਫਜ਼ਲਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਇਆ, ਕਰਮਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁੱਟ ਕੇ ਭੱਜਿਆ। ਮਤਲਬ ਫਜ਼ਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਪਰਵਾਹ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਿਲਣਾ ਜਦੋਂ ਘੁੱਗੂ ਵੱਜਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਇੱਥੇ ਆਮ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਜ਼ਲੇ ਤੇ ਕਰਮਿਆਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਲਣਾ ਘੁੱਗੂ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਸਰਮਾਇਆਦਾਰਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਭੱਜ ਪਏ। ਫਜ਼ਲਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ ਲਾਪਰਵਾਹ ਬੰਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਮਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੋ। ਓਏ ਮਿਲਣਾ ਘੁੱਗੂ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਘੁੱਗੂ ਵੱਜਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਘੁੱਗੂ ਵੱਜਦਾ ਸੀ, ਕੂ ਕਰਕੇ ਘੁੱਗੂ ਵੱਜਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਘੁੱਗੂ ਜਦੋਂ ਵੱਜਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਘੁੱਗੂ ਵੱਜਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮਿਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਉਹ ਘੁੱਗੂ ਵੱਜਿਆ ਹੈ, ਮਿਲ ਨਾਲ ਘੁੱਗੂ ਵੱਜਿਆ, ਮਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਸੀਟੀ ਵੱਜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਜ਼ਲਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਇਆ, ਕਰਮਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਟ ਕੇ ਭੱਜਿਆ, ਮਿਲਣਾ ਘੁੱਗੂ ਵੱਜਿਆ। ਕੌਣ ਕਰਾਇਆ ਦੇਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ 15 ਹੋਈ, ਮੁੰਸ਼ੀ ਮੁੱਛਾਂ ਵੱਟ ਕੇ ਗੱਜਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰਾਨਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਦਾ ਪਾਲਤੂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਮੁੱਛਾਂ ਵੱਟ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਓਏ ਜਵਾਨੋ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣਾ, ਅੱਜ 15 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਰਾਇਆ ਦੇਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ 15 ਹੋਈ, ਮੁੰਸ਼ੀ ਮੁੱਛਾਂ ਵੱਟ ਕੇ ਗੱਜਿਆ, ਮਿਲਣਾ ਘੁੱਗੂ ਵੱਜਿਆ। ਇੰਜਣ ਖਟਖਟ ਚੱਲੇ, ਦਿਲ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਪੇਟ ਨਾ ਰੱਜਿਆ, मिलना घुघू बजिया। मैं उर्दू दस दिया, वो जो मिल है उसका जो अलार्म है वो लगा, इसलिए जो फजला है वो आहिस्ता आहिस्ता आया है, जो कर्मा है वो थोड़ा ओबीडियंट है, वो बहुत तेज भाग के आया है। कौन किराया देगा बताओ भाई, आज 15 तारीख हो गई है। मुंशी ने मूछों को ताव देते हुए ये बोला। इंजन जो है ना वो चल के ना, बहुत ज्यादा इंजन चला चला के, बहुत ज्यादा लोहे के साथ काम कर कर के दिल भी लोहे जैसा हो गया है, लेकिन फिर भी अंदर पेट नहीं भर रहा, अंदर नहीं रज रहा। ये वो जो है ना वो जो किसान मजदूर है वो ये कह रहा है, ठीक है। तो मिलना घुघू वजिया, मिलना घुघू वजिया। ओके, दूसरी साड़ी जिहड़ी नज़म है ना वो ਧੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆ। ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਜ ਦੇਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਕਲਚਰ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜ਼ਾਤੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਧੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਵੀ ਦੇਗਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਧੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਜ ਦੇਣਾ ਉਹ ਤਲੀਮ ਦਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਤਲੀਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਤਲੀਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਦਾਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹੀ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਹੋਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਦਾਜ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਾਬਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਧੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਭੱਜ ਨਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਹੇਜ਼, ਦਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਹੇਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ। तो ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿੰਟਾ ਦਾਜ ਨਾ ਬਣਾ ਬੜੀਏ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮੰਗੀ। डियर मदर, मेरा जहेज मत बनाओ, डोंट मेक माई डॉरी, आई हैवंट आस्क यू एनीथिंग, मैंने तुमसे कुछ मांगा नहीं है। ये रेशम कंडे पौड़ सी, ये जो रेशम है ना जो तुम मेरे लिए बना रही हो, ये मेरे लिए कंडों, सूलियों जैसा, सुइयों जैसा होगा। एक गोटा ला सी आग, ये जो मेरे दुपट्टे पे तुम गोटा लगा रही हो ना, गोटे वाला दुपट्टा पुराने दौर में ये था ना, ये मुझे आग लगा देगा, मुझे जला के राख कर देगा। तू अपने हथी रोलना, मेरे प्योनी ऊंची पग। अम्मी जान, ये जो मुझे आप बहुत गिर के, लड़के वालों के सामने गिर के, झुक के मेरे मतलब मेरा दाज बना रही हैं, उनको उनके लिए उनके सामने बहुत अच्छा बनने की कोशिश कर रही हैं। तो आप ना मेरे अब्बू की जो ऊंची हुई पग है ना, शिमला जो उनकी इज्जत है, आप उसको रोल रही हैं। आप इतनी फिक्र मत करें, ठीक है, जो मुझे देना है, जिसने मुझे लेना है वो ऐसे ही ले ले। तो जितना दाज खिलार से है, मैं उतनी होसी नंगी। तो मुझे जितना ज्यादा देने की कोशिश करेगी ना, मैं उतना ही, वो समझेगा पता नहीं की गल है, इनू कुड़ी नू इन्ना दाज दिता, पता नहीं क्यों। पुराने लोग, मनफी बंदा हमेशा मनफी सोचता है, ठीक है, वो कहने पता नहीं की गल है, कुड़ी नू इन्ना दाज दिता, कुड़ी दा कोई गंद लगाया इन्होंने, ठीक है। ये टिक्का मत्था साड़ सी, ये गानी पासी फा, ये टिक्का जिहड़ा इत्थे लगा ना, इन्हें मेरा मत्था साड़ देना। बेबे तू अपने क्यों अब इन्ना परेशानी सिर ते गल्लां लैण डई, ये जिहड़ी गानी है ना मैनू फा पा देगी, ये मेरा साह घुट देगी। हयाती ने बलने थल्लां विच, हयाती जिंदगी दे गरम सहराओं में, ये जो सोना है ना, ये सोना बने ना संगी, ये सोना साथी नहीं होता माँ। सो मुझे प्लीज ये जहेज मत दो, तुम्हें पहले मुझे तालीम देनी चाहिए थी। सो दिस इज व्हाट ही एक्चुअली सेइंग।
ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਹੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਬੇ ਹਰਾਂ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਸਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ। ਜੋ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਜ਼ੀਦ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋਬਨ ਪੱਕੀ ਬੇਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੱਕੇ ਵੱਟੇ ਮਾਰੇ, ਲੱਗ ਗਈ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵੱਟਿਆਂ ਨੀ ਢੇਰੀ। उर्दू ही दस ना, मेरी जवानी जो है ना, जोबन जवानी, मेरी जो जवानी है ना ये पक्की बेरी है, ये फलों वाली एक पके हुए फलों का एक दरख्त है। जो भी मेरी जवानी को देखता है, ये जवान लड़की बोल रही है, जो भी मेरी जवानी को देखता है वो गंदी नजरों से मुझे देखता है, और कुछ लोग तो मुझे वट्टे मार देते हैं, कुछ लोग तो मुझे नोच लेते हैं। लग गई बेड़े विच मेरे इस जोबन के मेरे जमीर के अंदर वट्टियां दी ढेरी लगी, लोग वट्टे मारते ने, लोगों ने इन्ने वट्टे मारे ने कि मेरे ख्याल, मेरे जमीर के अंदर, मेरे तसव्वुरात के अंदर ढेरी लग गई है, लोगों ने मैनू जख्मी कर दिता। दिस इज अ वॉइस ऑफ अ लेडी फ्रॉम पंजाब, पर्टिकुलरली इहो जी गल पंजाब दियां गरीब धीआं दे वल्लों ही निकलदी, जदों वो अपनी अखां च सुपने लैके, ख्याल लैके, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਵਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਦੀਕੀ ਹਰੀ ਕਿ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਤੱਕੀ, ਰਾਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਤੱਕੀ, ਮੱਖਣਾ ਤੇ ਦੁੱਧਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜੀ, सावा सट्टा दूध दी छली। मैंने रास्ते में एक लड़की देखी जो कि देसी लड़की थी, बिल्कुल फिट, वो जो पंजाबी नहीं होती जटियां उस टाइप थी, वो बिल्कुल पली हुई थी, यका यक बिल्कुल है, दुद्धा नहीं पली, वो बिल्कुल नौजवान, ये ऊंची 5, 5.5, 6 फीट की जवान लड़की और बिल्कुल फिट, खूबसूरत, टिपिकल पंजाबी। सावा सिट्टा, इसको सावा कहते हैं, सब्ज सिट्टा छल्ली को कहते हैं, वो जो हम कॉर्न खाते हैं ना उसको सावा सिट्टा, दूधी छल्ली। ऐसे लगता है जिमें दो सिट्टा नहीं होता, सिट्टे 2 तरह के होते हैं ना, उसके जो दाने होते हैं ना, एक होते हैं पके हुए, कच्चे होते हैं, तो वो सावा सिट्टा था, दूधी छल्ली थी, वो कच्चे दानों वाली बहुत खूबसूरत छल्ली थी। 4 कदम कुड़ियां तो अगे, वो मुटियार है, अल्लड़ मुटियार है, जवानी का टाइम है, वो कुड़ियां तो 4 कदम अगे, टुरनी फिरनी सोहनी लगे। कुड़ियां तो 4 कदम अगे चलती पई है तो टुरदी फिरदी सोहनी लगती है। वो पंजाब दी एक सोहनी अल्लड़ मुटियार है। फिर जी फिर वो कहते हैं ढोलकी के बारे, पंजाब के जिहड़े सकाफत होंदे ने साडे लहिंदे पंजाब, क्योंकि पहाड़ी पंजाब की गल हो रही ते जिहड़ा ना ढोलकी का एक ब्याह दे उत्ते ढोलकी वजदी है ना, वो ढोलकी के बारे लिखते हैं कि डुमक डुमक ढोलकी वजे, कुड़ियां रल के मेहंदी घोली, रौला सुन के मासी बोली, झूठी मूठी गज्जी के ढोलकी वजदी पई ही ते मासी ने आख्या कुड़ियो की करदियां जे झूठा मूठा ही। हालांकि दिल अंदरों उंदा भी करता पई, उन्होंने खुशी सी ना, घर च ब्याह दा समा ही, उन्होंने खुशी सी ते झूठी मूठी गज्जना शुरू करता, ओए की करदियां जे कमलियो, एवें रौला ना पाओ, ठीक है। तो रौला जो डुमक डुमक ढोलकी बजे, वो जो बिल्कुल ताल वाली ढोलकी बज रही है, कुड़ियां ने सब ने मिलके मेहंदी घोली है, रौला जो सुना है जब ये ना कुड़ियां हंसने खेलने की, चहचहाने की, चिड़ियों की तरह लड़कियां चहचहाती हैं ना, तो उनकी तरह वो मासी बोली, ओए वो तुसी फलाना काम शुरू करता हो कि छड्डो इनू परा। सो दिस वाज ऑल अबाउट बाकी सदीकी। जे तुसी सारे नू सुन लोगे ते इन्हां च 2 लाइनां नू याद कर लोगे ना ते ओ ते कोड कर दोगे, इंशाल्लाह डाढे सोहने नंबर आएंगे अपने पाकिस्तान फाइंदाबाद। मेरे वालिद साहब से दुआ जरूर करना।